আপনারা দেখছেন এভিএন টিভি কলকাতা, নিরপেক্ষ নয়, সত্যের পক্ষে। ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স সেগুলো কিভাবে সরকার খরচ করছে, সেই খরচ কোথায় কিভাবে হচ্ছে, নিয়ম মেনে খরচ হচ্ছে কিনা, কোথাও কোনো ত্রুটি হচ্ছে কিনা, সমস্ত কিছু দেখভাল করার দায়িত্ব হয়েছে পরে ভারতবর্ষের পিএসসির উপরে। তো স্বাভাবিকভাবেই পিএসসি কমিটিকে সংসদীয় ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। আজ থেকে 100 বছর আগে 1921 সালে তৈরি হয়েছিল পিএসসি, পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি। আজ কিন্তু আমরা মুর্শিদাবাদে যখন এসেছি তখন পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির 100 বছর পূর্ণ হওয়ার বছরে এসেছি। অর্থাৎ পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির 100 বছর যখন পদার্পণ করেছে তখন প্রথম যে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির যে ট্যুরটা হচ্ছে সেইটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে, এবং তারপর আমরা আমাদের জেলায় নিয়ে এসেছি। ব্রিটিশ আমলে যে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি ছিল তার চেয়ারম্যান হতো যারা সেদিনের যারা ব্রিটিশ সরকার, অর্থাৎ সেদিনের যে ঔপনিবেশিক সরকার, তাদের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের তরফ থেকে সেখানটাই একজনকে ফিনান্স দেখার ডাকে নিতে নিয়মে আসা উচিত আর কি। জেসিআই পার্টের যেহেতু চেয়ারম্যান, এসিআই চেয়ারম্যান, এগুলো আসে তারা। এখন আমরা যে চেয়ারম্যান না আসলেও হঠাৎ করে চেয়ারম্যানের তো সব ব্যাপারে অভিজ্ঞতা না হয়ে যেতে পারে দুদিনে, সে তার অল্টারনেটিভ কাউকে পাঠাতে পারে। মূলত আমাদের মিনিস্ট্রি অফ টেক্সটাইলের অফিসিয়াল যারা, তারা তো এখানে মজুদ আছে। আমাদের কলকাতাতে ধরুন সংখ্যা বেশি ছিল, গ্রামীণ শহর, তাদের অনেক এনগেজমেন্ট থাকে। কালকে 2-3 জন এমপি অংশগ্রহণ করার পর তারা সেখান থেকে লিভ করে, আবার তারা আসবে। আমাদের এখানটায় কালকে আমরা 5 জন এসেছি, আবার আজকে আসবে, আবার কালকে আসবে। আমাদের এরকম চলে প্রতিদিন। হয়তো যারা এমপি তারা প্রতিদিন হয়তো তাদের নানা রকম এনগেজমেন্ট থাকে। সবাই তো আমার মতন এদেশের এমপি না যে কোনো কাজ না খালি বড় করে বসে থাকা, তাদের অনেক কাজকর্ম থাকে। তারা সেখানটাও করবে, আবার আমাদের সঙ্গেও করবে। আর কোন কোন দপ্তরে? হ্যাঁ, রবীন্দ্র সদনে একদিন ইন্টারাকশন হবে, এখানে হবে। হ্যাঁ, তাদেরকে ডাকবো আমরা। হ্যাঁ, যারা সেলফ হেল্প গ্রুপ টুপ করে তাদেরকে ডাকছি, তাদের অভিজ্ঞতা, তাদের সমস্যা কি, তাদের আর কি কি সুবিধা দেওয়া যায়। আমরা ইন্টারাক্টিভ সেশন করাচ্ছি, মানে টেক্সটাইল মিনিস্ট্রিকেও রাখছি সঙ্গে। জানো তোমরা জুট পাটকলের মালিকদের রাখছি, তোমরাও জানো, সবাইকে মিলে ভাবতে হবে। জলশক্তি দপ্তরের লোক থাকবে তখন নিশ্চয়ই বিষয়গুলো উঠবে। জলশক্তি দপ্তর যখন থাকবে তখন বিষয়গুলো নিশ্চয়ই উঠবে। তবে ভাঙন শুধু তো কেন্দ্রের না, ভাঙন তো রাজ্যেরও। রাজ্যের যারা অফিসার তাদেরকেও বিষয়টা নিশ্চয়ই হাইলাইট করার চেষ্টা করা হবে। नमस्ते सबको। साहब पत्रकार मीटिंग कैसे? सब लोग आ गए? पूछिए। सारे आ गए। आप चेयरमैन साहब कांस्टेबल पीछे है, कोई चिंता नहीं। अरे आप ऐसे नहीं होता। मीटिंग के बारे में कुछ बताइए, क्या क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये हमारी जो पीएससी कमेटी है, लोक लेखा समिति, पार्लियामेंट की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है, और इसीलिए उसके जो हमारे चेयरमैन, हमारे जो उसके अध्यक्ष हैं, माननीय अध्यक्ष, और यहाँ बहरामपुर के माननीय सांसद श्री अधीर रंजन चौधरी जी, उनके कारण ये कमेटी यहाँ पर विजिट करने आई है कि हमारे इस क्षेत्र के बहरामपुर, मुर्शिदाबाद, ये जो आसपास के नादिया, कि वहाँ पर जूट किसानों का क्या क्या समस्याएं हैं। भारत सरकार की कई योजनाएं हैं
चाहे उज्ज्वला योजना हो या दूसरी जो भारत सरकार ने गरीबों के लिए, गांव गरीब और किसानों के लिए जो योजना की है, विशेष रूप से आपको मालूम होगा कि इस पश्चिम बंगाल सरकार के कारण कई हमारी भारत सरकार की जो योजनाएं हैं वो किसानों को यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो यहाँ किसानों से मिल करके उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, विशेष रूप से जूट किसानों की क्या समस्याएं हैं, उसके लिए चाहे हमारा जो जल की जो बात है, जल मिशन भारत सरकार ने नया शुरू किया है, जल के बारे में क्या समस्याएं हैं, सिंचाई के बारे में क्या समस्याएं हैं, लोगों को पीने के पानी की क्या समस्याएं हैं, गैस की क्या समस्याएं हैं, जो गरीब लोग हैं उनको जो प्रधानमंत्री आवास योजना उनको मकान मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, इस तरह की जो इस पर भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसमें भारत सरकार ने जहाँ भी पैसा लगाया है उसमें भारत सरकार का पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो लगता है वो कितना पैसा यहाँ पर ठीक तरह से लग रहा है या नहीं लग रहा है, पीएसी कमेटी ये सब काम देखती है। और उसके लिए मैं अपनी तरफ से व्यक्तिगत रूप से, हमारे साथी लोग, हमारे माननीय सांसद यहाँ पर हैं, मैं अपने अध्यक्ष माननीय श्री अधीर रंजन चौधरी जी का धन्यवाद करता हूँ। इसी बहाने हम आप सब लोगों से मुलाकात आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, मैं सांसद हूँ बागपत कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश के अंदर। फॉर्मर मिनिस्टर? हाँ, पहले मैं मिनिस्टर होने का भी मुझे मोदी जी के साथ एक मौका मिला है, उससे पहले मैं पुलिस कमिश्नर था। सुप्रीम कोर्ट बोला हाँ, राय दिया जो कृषि बिल वापस लो। नहीं, किसी बिल रोकने के लिए केंद्र सरकार के कहा अभी सुप्रीम कोर्ट। हाँ, तो कृषि बिल रहना चाहिए ये बोला ना। कैंसिल करने के लिए नहीं बोला है, उन्होंने कहा है कि उसको अभी अमल करने पे किसानों के साथ जो बातचीत हो रही है तो उस पर एक समाधान हो जाए, फिर उस पर अमल हो। तो एक तरह से ये सुप्रीम कोर्ट ने उस किसान जो तीनों बिल आए हैं उनको इंडोर्स किया है, उन्हें खारिज करने का कोई निर्देश नहीं दिया है, केवल एक होल्ड करने की बात कही है। तो वो होल्ड करने की बात मतलब कि किसान बिल की पुष्टि किया है कि ये बिल पार्लियामेंट से जो पारित हुआ है वो हित में है। अब किसान के जो इशूज हैं उनकी समस्याओं के संबंध में जो पहले भी उन्होंने कहा था कि इसका समाधान निकलना चाहिए, तो इस दिशा में भारत सरकार खुद प्रयास कर रही। 8 राउंड की वार्ता भारत के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, भारत के रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी खुद बात कर रहे हैं। और जो 4 बिंदु उठाए गए थे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात थी, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी रहेगी। और यहाँ तक कि डॉक्टर स्वामीनाथन की जो 2005 की रिपोर्ट थी उसको लागू किया 18 में कि हम जो उत्पाद की कीमत उससे 1.5 गुना MSP में देंगे। और जो APMC थी, मंडी समितियाँ थी, उन मंडी समितियों को निश्चित तौर से स्ट्रेंथन करेंगे और ये राज्य का है। और तीसरी और चौथी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, उसमें भी केवल क्रॉप का एग्रीमेंट होगा, कहीं भी क्रॉप के एग्रीमेंट के साथ लैंड का स्वामित्व किसान का ही रहेगा। तो और चौथी बात कि 1 नेशन 1 मार्केट हम किसानों को प्रोवाइड करेंगे कि वो ई-नैम से जहाँ भी उनको अपने उपज का सबसे सर्वाधिक लाभ मिले। तो स्वाभाविक है कि ये चारों बिंदु के हम एड्रेस कर चुके 2 बिंदु, लेकिन इस आंदोलन में कहीं न कहीं राजनीति हो रही है, चाहे पंजाब के चीफ मिनिस्टर हों, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हों, ये लोग उस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर से किसान आज इसका वेलकम भी कर रहा है, तो इसलिए इसका समाधान निकला। नाम और डेजिग्नेशन? जगदम्बिका पाल हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश के जो सिद्धार्थनगर है वहाँ से हूँ।